Friends, have you ever wondered that if there was a Nobel Prize for innovation, which country would have won the maximum Nobel Prize? India. Absolutely right. And when I was thinking on this line, one of my friends said me why India will win. He will give some examples. Just for looking at the pictures, you can decide. Espresso coffee being manufactured or prepared with the help of a pressure cooker. This can happen only in India. Next. Oil slag is being used as a mosquito repellent. Who else can think of it? Next. Protection from rain and sunshine. Why should only car owners be enjoying that thing? Even two-wheeler riders can also have protection from rain and sunshine. And this is happening in India. Jugaad. Then I came to know that there is something called as Jugaad technology or Jugaad innovation. And the next speaker who is going to speak about this, the topic itself is Jugaad. The speaker is our very own Sachin Jadhav. समय ऐसा बनता है कि गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया है पता ही नहीं चला है ना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा काम तो इसने आधा कर दिया जुगाड़ का। बट जैसे बीसीए में क्रिकेट मैच होती है ना, तो मैं आनंद को फोन करता हूँ कि यार 2000 टिकट जुगाड़ कर दो ना मेरे को क्रिकेट मैच के या किसी चैरिटी शो के। तो दिस बुक इज नॉट अबाउट दैट जुगाड़ जो हम नॉर्मली अपने कंट्री में होता है। जुगाड़ बोलने से हम थोड़ा उसको नेगेटिव देखा जाता है। हिंदी में जब हम जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं, दिस टर्म इज लुक्ड अपॉन एज नेगेटिव। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर जुगाड़ दैट विल गिव इट अ वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाला कॉर्पोरेट टच। इनोवेशन इज द वर्ड जो आपने अभी दिखाया था स्लाइड में, जुगाड़ इनोवेशन। तो इनोवेशन उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके अंदर में टर्म यूज की गई है जुगाड़ इनोवेटर्स। बेसिकली इनोवेशन इज द वर्ड। हम जुगाड़ कब करते हैं? प्राइमरीली दिस बुक विल टेल यू दैट वी कम टू जुगाड़ इन दीस 4 केसेस। पहला, सीक अपॉर्चुनिटी इन डाइवर्सिटी। सुज़लॉन एनर्जी, तुमने सुना है नाम सुज़लॉन एनर्जी का? आपको पता है इसके प्रमोटर कौन है? तुलसी तंती नेवर वांटेड टू स्टार्ट सुज़लॉन। He went to Gujarat in 1980 to set up a textile plant in Surat in 1980. When he set up that textile plant, that was the time in Gujarat when there was inconsistent electricity supply, and that was very costly, which was very negative for the growth of a textile unit. तो उनको लगा कि कोई alternate energy source का मुझे जुगाड़ करना है। तो उन्होंने सर्च किया कि क्या हो सकता है। तो उनको काफी ऑप्शंस आए उस दौरान। जो तो सबसे सस्ता और सबसे कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स लगा, that was wind energy. So in 84 or 82, he set up 2 windmills in Surat plant, textile plant. तो उनको ध्यान में आया कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। And instead of concentrating on textile unit, he concentrated on that wind energy. And today Suzlon is world's 5th largest energy provider, alternate energy source provider. They operate in 30 countries with employee strength of 13,000. That's the story of Suzlon. Second is do more with less. मैं और प्रफुल्ल हर संडे को 10:30 बजे वीए में आते हैं। क्यों हम 2 अलग गाड़ियों से आते हैं? We hit carpool, हम एक कार में आते हैं। अगर हमको रितेश का भी घर आसपास है तो हम तीनों आ जाते हैं। That is do more with less. एक कार में हम 4 लोग आ रहे हैं, that's carpool. Can you give me another example जहाँ पैसे का खर्चा नहीं होता और we do more with less? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। Sorry? बस सर्विसेज। नहीं, मैं और श्रीकांत सर रोज सुबह 6:30 बजे बैडमिंटन खेलने जाते हैं। तो मैं इनको मिस कॉल देता हूँ, सर मैं आ रहा हूँ। तो ये भी 6:30 पहुंच जाएंगे। मेरा कॉल नहीं आया, पैसा नहीं लगा ना हमको। तो Let's do more with less. It's a phenomenal thing that Indians are using, missed calls phenomenon. Third is follow your heart. Helicopter shot. किसी भी कोच ने कभी धोनी को सिखाया नहीं होगा helicopter shot, but he followed his heart. He reacted to that bowling style and he discovered this helicopter shot. Can you give me another cricketing shot which is not in the book? And which was uppercut. One more, very reverse exactly. Reverse sweep is now becoming a textbook shot. It was never a textbook shot, but reverse sweep is so accepted
इट्स अ जुगाड़ शॉर्ट बेसिकली। कीप इट सिंपल। कोई भी चीज जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है हमको, टू सिंप्लीफाई दैट हम कोई एक टेक्नोलॉजी बोला ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं, कोई तो भी सिस्टम लगाते हैं जो आसान कर देता है चीजों को। तो कीप इट सिंपल जब करना है तो वी गो इनटू जुगाड़। Then first of all, let me tell you why did I pick up this book. You know, I am a person who reads very less books. Until Akshay bhai will tell me कि यार तुम ये किताब पढ़ लेना, आज मेरे को यहाँ 7 किताबों के नाम पता लग गए, I might take a few of them. तो पहले तो मुझे इसका forward मैंने देखा, it was by Ratan Tata. I respect this gentleman, so I thought he must be a good book. It was, its introduction is by Sam Pitroda. तो ये तो ऐसी personality ऐसी शख्सियत है कि जो किसी भी किताब को तो justify नहीं करेंगे। तो मुझे लगा कि शायद इस किताब में कुछ बात है। And the authors are, then I searched on the authors. First one, 3 authors to this book by the way. Naveed Rajau is an independent thought leader and strategy consultant based in Silicon Valley. He is a faculty at World Economic Forum. The next is Dr. Simone Ahuja. She is founder and principal of Blood Orange, a marketing and strategy consultancy firm. She contributes to Harvard Business Review blog very regularly. She is on World Economic Forum also. Third, Dr. Jaideep Prabhu is director of Indian and Global Business at University of Cambridge in IIT Delhi, Adina. तो ये 3 लोगों के बाद मुझे लगा कि yes, I should pick up this book. Then I picked up this book. मेरी आदत जाएगी नहीं, old habits die hard. I'll keep asking questions. Which is world's most innovative company according to the survey conducted in 2012 by Booz and Company? Apple. Google. Absolutely, Apple. Not many surprises. Apple is the top company, which is called an innovative company. Which is the second one? Abhi naam liya. Google. Google is the second one. There are 2 obvious choices. They keep on innovating. But the surprise is the third one. पहले 2 तो बहुत obvious choices थी मेरे लिए. Which is the third one? Facebook. हाँ? Sorry? Rigged है. You've seen my PPT. Well, 3M is the, you know, क्या बनाती है 3M? Post-it notes. Post-it very famous. और क्या? RXS बनाती है और? Medical supplies. You will be surprised. It's the most innovative company. ये क्या क्या बनाती देखिए आप. It's 1902 में बनी कंपनी है, 75,000 प्रोडक्ट्स बनाती है. छोटे रोजमर्रा की जिंदगी. जब सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक स्लोडाउन था, it rolled out 1200 products that year. That's innovation का spirit, सबसे highest spirit है. Spare time और 15% फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है जो गूगल और एप्पल यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेड, आप जिस सैलरी के लिए आप पे की जाती है, मतलब आप समझ लीजिए हफ्ते में आप 48 आवर्स की आपकी वर्किंग ये है और उसकी आपकी सैलरी है, तो उसमें से पेड टाइम जो है आपका, उसका 15% आपको कंपनी बोलती है कि आप कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करें या कोई ड्रीम प्रोडक्ट पे काम करें, 3 महीने के अंदर आप मेरे को प्रोड्यूस करें, बताएं कि आपको ये बनाना है। 3M में काम करती है और उनमें से कुछ सेलेक्ट प्रोडक्ट को वो लॉन्च करती है अपने एम्प्लॉइज में बनाए हुए। दैट इज कॉल्ड एज दिस फॉर्मूला। दे लॉन्च्ड इन 1948, जो आज लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको 15% फॉर्मूला बोलते हैं। 6 सिग्मा का उन्होंने कहा कि दे स्पॉइल्ड द ग्रोथ। 6 सिग्मा लोग फॉलो करते बोलते हैं कि 6 सिग्मा तो हमारा ग्रोथ को स्पॉइल किया है। ये केस स्टडी बहुत पढ़ने लायक है इस किताब में, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। ऐसी और कम से कम 15 केस स्टडीज होंगी जो हमें पढ़नी चाहिए, बट दिस आई थॉट शुड बी हाईलाइटेड बिकॉज़ इट गोज अगेंस्ट 6 सिग्मा। I have listed out few Jugaad experts. One of them is Enrique Gomez Junco. He runs a company called Optima Energia in Mexico. Mexico. इसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, बताना के लिए समय नहीं अपने पास, बट वन मस्ट रीड दिस स्टोरी एनरिके गोमेज की। ये भी काइंड ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स पे काम करते हैं, पर इनका ऐसा कहना है एनरिके का कि वो उनको कंपनी को बोलते हैं कि बेसिकली होटल्स रिसोर्ट्स इन लोगों के लिए काम करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि आप मेरे को पैसे नहीं देंगे, पहले आप मेरा एनर्जी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स को आप अप्लाई करेंगे, जो पैसा बचेगा वो मेरे को देना। इस तरह का इन्होंने फॉर्मेट कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं कंपनी के साथ, इसलिए वो बिकता है। कुल सिद्धांत मैंने आपको बताया। ओपी भट्ट, ही वाज मेड द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने वो परिवर्तन नाम का एक प्रोजेक्ट लाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज देखते हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर दिखता है या जो उसका चेहरा दिखता है हमको, द मैन बिहाइंड इज ओपी भट्ट। कनक दास ये ओडिशा का एक बंदा है जो अपने वर्क प्लेस में जाता था साइकिल से, तो बहुत बम्पी रोड थे, तो उसने एक
ऐसी चीज बनाए कि जो सामने वाले टायर से एनर्जी प्रोड्यूस करती है बम्प्स की वजह से, एंड इट इज आईआईटी में उसको बनाया हम लोगों ने। डॉक्टर राणा कपूर इंस्पायर्ड बाय एम पेसा। ये जानता है कोई एम पेसा क्या होता है? एयरटेल वोडाफोन। अपने यहाँ पर एम पेसा वोडाफोन का है, वहाँ पर सफारीकॉम अफ्रीका में, सफारीकॉम नाम का एक टेलीकॉम कंपनी है, वोडाफोन उसका 40% स्टेक होल्डर है। उन्होंने एक एम पेसा नाम का एक चीज किया है। उनका ऐसा कहना था कि इंडोनेशिया में खाली 10% ऐसे लोग हैं जो बैंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बैंक सेटअप करना मुश्किल है पर मोबाइल तो लोगों के पास अवेलेबल है, तो ये हवाला टाइप का ही है बट ऑर्गेनाइज्ड हवाला है। एम पेसा इज ऑर्गेनाइज्ड हवाला। इट्स इनोवेशन, मतलब आपके पास फोन है, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू यू, दैट अमाउंट इज टेकन केयर बाय द बैंक, रिस्पेक्टिव बैंक। उन्होंने एक बैंक ऐसा टाइप किया है, मोबाइल से टाइप करने की जरूरत ही नहीं, आपके पास तो मोबाइल है। तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर राणा कपूर मतलब जो सीईओ हैं इसके यस बैंक के, उन्होंने यहाँ पर चालू किया इसको यस मनी के नाम से। अफ्रीका में एम पेसा चला। नागानंद मूर्ति, राहुल पानिकर ऑफ एम्ब्रेस एक इंक्यूबेटर, चाइल्ड इंक्यूबेटर बनाने वाली कंपनी, जिन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलने वाले इंक्यूबेटर्स बनाए हैं। अमेजिंग स्टोरी। डॉक्टर मोहन ऑफ डायबिटीज एम्बुलेंस चेन्नई, इनकी एम्बुलेंसेस चलती हैं तमिलनाडु में। ये भी बहुत इनोवेटिव स्टोरी है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। इनको तो नासा सपोर्ट करता है जीपीएस देने के लिए, डॉक्टर मोहन। ये वीएमए के लिए एक बहुत मुझे अच्छी चीज मिली इस किताब में, एंडेवर। ये एक कंपनी है जो मेंटरिंग करती है। हम बात करते हैं मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। इस लेडी को एक बंदे ने पूछा, टैक्सी पर कैब ड्राइवर ने, हाउ कैन आई स्टार्ट माय ओन कंपनी व्हेन आई डोंट इवन हैव अ गैराज। उस लेडी को पूछा तो उसको लगा कि इसको लिंडा रॉबिनबर्ग, शी थॉट दैट ही नीड्स मेंटरिंग, he needs mentoring session. So she runs this company called Endeavor, which is a global mentoring company. खाली मेंटरिंग का काम करते हैं इस तरह के लोगों को। जो लर्निंग्स मुझे इस बुक में से मिली, there is always a smarter and cheaper way to do things. You just have to find it. Solution is hidden in adverse conditions. Locate it. Your jugaad can go global. Khan Academy. इसका ऐसा है कि this gentleman, Bangladeshi, Mr. Khan, he went to Africa to his cousin's place. तो उसकी बेटी थी जो she was struggling to solve a mathematical sum. She was in standard 2, 3, whatever. और उसने इसको पूछा मिस्टर खान को कि ये मुझे सम नहीं आ रहा है, कैन यू हेल्प मी आउट। तो उसने देखा उसको बड़ा आसान लगा, तो उसने यूएस में वो था उस टाइम पे, उसने वो सम उसका सॉल्व किया। उसको लगा कि मैं इसको यूट्यूब पे डाल देता, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। तो वो इतना वायरल हो गया कि उसके अभी कम से कम 1000 के ऊपर उसकी क्लासेस चलते हैं यूट्यूब में, खान एकेडमी के नाम से, सब वायरल होते हैं। सब खाली यही काम करता है सॉल्यूशन देने का। इज अ बांग्लादेशी बेस्ड। तो वी कैन गो ग्लोबल ऑन आवर जुगाड़। अपने हम लोग सभी लोग जुगाड़ करते हैं कोई ना कोई इनोवेटिव। सो माय सजेशन टू यू इज बी अ जुगाड़ इनोवेटर एंड टेक इट ग्लोबल।